Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we are going to read about electric power. First off, what is power? Rate of doing work, that is called as power. यानी कि कोई भी बॉडी, कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट किस हिसाब से काम करता है, किस शरह से काम करता है, यानी कि रेट ऑफ डूइंग वर्क, दैट इज कॉल्ड एज पावर. जब हम रेट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, व्हेन वी यूज द टर्म रेट, द टाइम इज included in it automatically. Therefore, power is work done divided by time taken. But here, when this work is done with the help of electrical energy, then this is called as electric power. Then what are the works which are done with the help of electrical energy or electric power? That is, for example, we run machines, we run fans, we use this electric power for various purposes, and various works are done by this electrical energy. For example, moving of the blades of a fan, moving the wheels of a machine, moving the machinery parts, that is called as the movement, or that is called as work. Therefore, then what is the definition of electrical power? Electric power is the electrical work done per unit time. Electric power, electric कितना काम, electrical work done यानी कि कितना काम हो गया है per unit time में, that is called as beta power. Therefore, power is equal to work done divided by time taken, or P is equal to W beta T, W by T. Then units of power. Unit power is measured in watts. Therefore, 1 watt is equal to work done. It is measured in joules. 1 joule divided by time, that is in 1 second. Therefore, SI unit of electrical power, that is watt. The bigger unit of watt is kilowatt. Kilowatt. Kilo itself means thousand, and watt. 1 kilowatt is equal to 1000 watts, or 1 kilowatt is equal to 1000 watts. फार्मूला फॉर ईपी, इलेक्ट्रिकल पावर के लिए दो तीन फार्मूलाज हैं. सबसे पहला, वी नो दैट पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू बटा टी, एज यू हैव लर्नड इट above here in this definition. Then power is equal to W by T. This is equation 1. But electrical work done is equal to product of potential difference, current, and time taken. This is work done in electrical equipments where you use electrical energy, and work done is there given by W is equal to V into I into T. Therefore, when we substitute this W is equal to V into I into T in this equation, first we calculate it as P is equal to W by T, but W is V I T multiplied by divided by T. Ye T or ye T, these will get cancelled, so P is equal to V into I. Therefore, power, it is measured in watts, and this voltage, it is potential, it is volts, and current is amperes. One W is equal to 1 VA. ये एक फार्मूला है बेटा. दिस इज फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिकल पावर. P is equal to V multiplied by 1. This is equation number 1. This is formula number 1 for calculating power. For example, if you are given two variables, if you are given two quantities, for example, V voltage दिया है and current दिया है, then you will be able to calculate power. If power is given and voltage is given, you will be able to calculate current, so on and so forth. Other formulae. There are more than one formula for calculating electric power. As many as 3 are there, 4 are there. Here we have discussed only 3. This power P in terms of I and R. Beta, here you have learned that P is equal to V into I. According to Ohm's law, V is equal to IR. V is equal to IR. Therefore, जब V IR के बराबर है, तो आप बेटा इस V के बदले IR लिख सकते हैं. Therefore, P is equal to I into R into I, that is I into I, that is R, I square R. This is formula number 2. Then power P in terms of V and R. P is equal to V into I. So in terms of V and R,
Therefore I is equal to according to Ohm's law V divided by R. तो I का वैल्यू हम लिखेंगे V divided by R, P is equal to V into V divided by R, that is P is equal to V square divided by R. This is formula number 3 in case of electrical power measuring. Now dear students, after this very concept of power, we are going to read about heating effect of electric current. There are various effects of current. For example, it is magnetic effect, it is chemical effect, it is here heating effect. Heat effect, simple example, in your household equipments like heater, when you supply electric current to the heater, the nichrome wire gets hot. Nichrome wire gets hot and there a lot of heat is produced. That is actually the conversion of electrical energy into heat energy. Heat energy gives effect to the heat, and our homes and our rooms get very warm, get hot. Therefore this conversion of electrical energy into heat energy, this is called as heating effect. Students, dear students, nichrome wire gets hot. nichrome एक alloy है, it gets hot when electric current is passed through it. Therefore the process by which this electrical energy gets converted into heat energy, that is called as heating effect. तो यहाँ पे electric energy changes into heat energy. तो इसी तरह जब हम काम करते हैं, मिसाल के तौर कोई हथौड़ा चला रहा होता है, कोई वर्जिश कर रहा होता है, हथौड़ा चलाने के वक्त जब वो हथौड़ा ऊपर ले जाता है, नीचे किसी कील पर ठोक देता है या किसी पत्थर पे ठोक देता है, पत्थर भी गर्म हो जाता है, कील भी गर्म हो जाता है। इन टर्म्स वो जो हथौड़ा होता है वो भी बीट करने से बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। वहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी बेटा यूज़ हो जाता है और वो कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में। क्यों? जब हम हथौड़े को कील पर दे मारते हैं, वहाँ पे बेटा फ्रिक्शन हो जाता है कील के बीच में और इस हथौड़े के बीच में। तो फ्रिक्शन जो हो जाता है, उस फ्रिक्शन की वजह से वो जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी से। तो कील गर्म हो जाता है, हथौड़ा भी गर्म हो जाता है। इसी तरह वो जो फ्रिक्शन हो जाता है वो ओवरकम करने के लिए मैकेनिकल एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह जब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में करंट पास हो जाती है, तो ये करंट जो होती है, इसको जो ये मटेरियल होता है जिसमें ये पास होना होता है इलेक्ट्रिक करंट, वो दैट इज ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। तो वो रेजिस्टेंस जो होता है, उस रेजिस्टेंस की वजह से, जिस तरह फ्रिक्शन की वजह से वो कील गर्म हो जाता है, इसी तरह इस कंडक्टर की रेजिस्टेंस की वजह से वो जो कंडक्टर होता है वो हीट अप हो जाता है। देयरफॉर दिस इज आल्सो कॉल्ड एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देन ये जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, इसको जूल्स लॉ भी कहते हैं। फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग हीट प्रोड्यूसर। अब बेटा आप जो ये जो हीट वहाँ पे प्रोड्यूस हो जाती है हीटिंग इफेक्ट की वजह से, वो हीट आप किस तरह निकाल सकते हैं? इट इज एक्चुअली रिलेशन H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। देन हाउ यू आर एबल टू कैलकुलेट दैट? कंडक्टर जो है, जब इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाती है, उस इलेक्ट्रिक करंट को सामना हो जाता है रेजिस्टेंस का, क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक दूसरे को बाउंस करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को कोलाइड करता है, दूसरा तीसरे को कोलाइड करता है। कोलिजन में ये करंट जो होती है, इट सफर्स ए प्रोसेस ऑफ रेजिस्टेंस। तो वो रेजिस्टेंस जो होता है उसकी वजह से अपोज हो जाता है फ्लो ऑफ करंट को। अब ये फ्लो ऑफ करंट जो है, इसको आसानी करने के लिए सो वर्क इज नीडेड टू बी डन। सो वर्क इज नीडेड टू बी डन। वर्क का मतलब हो गया, ये जो कंडक्टर है इसको किसी सोर्स के साथ मिलाया जाता है, फिर वो सोर्स जो होता है वो उसको करंट देता है, तो वो हो गया वर्क डन बाय दैट इलेक्ट्रिकल सोर्स। सो वर्क इज नीडेड टू बी डन बाय करंट I टू मूव चार्ज। क्यों? चार्ज को मूव करने के लिए, और वो चार्ज मूव हो जाता है अगेंस्ट पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस अगर कम है तो
बहुत ज़्यादा चार्ज मूव हो जाएगा, वोल्टेज हो जाएगी, ये बहुत ज़्यादा चार्ज मूव हो जाए। इसका क्या मतलब है? अगर बैटरी ऑलरेडी चार्जड है, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, अगर बैटरी ऑलरेडी फुल चार्जड है, you would not be able to deposit more electric charge in that. If it is less charged, you will be able to charge it for 2, 3, 4 hours. ये फर्क है। तो इसका मतलब हो गया, जब आप ये इलेक्ट्रिक करंट को इसमें से पास करना चाहेंगे कंडक्टर में से, देन यू हैव टू डू वर्क टू मूव करंट, टू मूव अ करंट, टू मूव चार्ज अगेंस्ट पोटेंशियल डिफरेंस V। देन आप बेटा जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, ये होता है V इक्वल W/Q। इट इज एक्चुअली, यहाँ पे आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज मूव। चार्ज मूव मीन्स इलेक्ट्रिक करंट मूव, तो वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज मूव। अगर चार्ज बहुत ज्यादा मूव हो गया है तो वोल्टेज कम थी उसमें, या अगर वोल्टेज ज्यादा थी ऑलरेडी बैटरी में, आप कम चार्ज मूव कर सकते हैं। तो ये इस तरह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल बनता है। तो W इज इक्वल टू Q मल्टीप्लाइड बाई V, Q मल्टीप्लाइड बाई V। ऑल्सो फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ करंट, I इज इक्वल Q बाई T, यानी कि करंट जो होता है दैट इज द चार्ज मूव्ड इन पर यूनिट टाइम। टाइम में आप कितना चार्ज मूव करेंगे कंडक्टर में से, दैट गिव्स द मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देन Q इज इक्वल टू I मल्टीप्लाइड बाई T। यहाँ पे आपको बेटा मिल गया W इज इक्वल टू Q मल्टीप्लाई V, इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे आपको मिल गया बेटा Q इज इक्वल टू I मल्टीप्लाइड बाई T। एंड फ्रॉम ओहम्स लॉ से आपको पता चला है V इज इक्वल टू I R, V इज इक्वल टू I R। Substitute second equation and third equation in equation number 1। ये जो W is equal to Q into V, Q का वैल्यू है और V का वैल्यू है, ये दोनों वैल्यूज हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। Therefore equation is given W is equal to Q into V, W is equal to Q I into T, V I into R। यहाँ पे भी I, यहाँ पे भी I, multiply I square R T। Therefore W is equal to I square R T। Work done, it is I square RT here. But when an electrical equipment works, जब एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट वर्क कर रहा होता है, वर्क करने का मतलब हो गया फैन चल रहा है, ये काम कर रहा है हवा देने का, हीटर चल रहा है, हीटर ऑन है, ये हीट देता है, जो भी इससे बर्तन है उसमें पानी है वो गर्म हो जाता है, ये वर्क हो जाता है। मगर वर्क करते करते समय जितना भी ये वर्क करता है उतना हीट बाहर निकलता है। तो therefore W is equal to I square RT, तो W is equal to I square, since work done is equal to heat produced, जितना आप वर्क करेंगे उतना ही हीट प्रोड्यूस भी हो जाएगा। therefore W is equal to H, W is equal to H, so that we are able to W is equal to H, H is equal to I square RT जूल, इतना हीट प्रोड्यूस हो जाएगा। अब इससे कुछ रिजल्ट्स निकलते हैं, देखो बेटा क्या क्या रिजल्ट है। हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हीट प्रोड्यूस जो हो जाती है ये किस किस को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है टू क्वांटिटीज वेरी डायरेक्टली, इफ वन क्वांटिटी इंक्रीजेस अनदर क्वांटिटी आल्सो इंक्रीज, they increase in respect to each other proportionately, that's called as directly proportional here. Heat producer is directly proportional to square of current, square of current, square of current का मतलब हो गया if H directly proportional to R square। अगर पहले हीट का करंट का वैल्यू था 2 एम्पियर, अब अगर हम इसे स्क्वायर करेंगे वो बनेगा H 4 टाइम्स। अगर पहले 3 था बाद में इसका स्क्वायर हो गया हुआ 9 टाइम्स। फर्स्ट रेजिस्टेंस ऑफ वायर, रेजिस्टेंस सेकंड, हीट प्रोड्यूसर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ वायर, जितनी वायर में रेजिस्टेंस है उतनी हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। अगर कम रेजिस्टेंस है वायर में तो कम हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, ज़्यादा रेजिस्टेंस है वायर में ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाएगी।
और हीट प्रोड्यूसर इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। यानी कि देखो बेटा, अगर हम 15 मिनट के लिए हीटर को ऑन करके रखेंगे एक कोल्ड कमरे में, वो उतना गर्म नहीं हो जाएगा एज कम्पेयर टू व्हेन वी कीप इट ऑन फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे तक इसको हाँ कमरे में रखेंगे ऑन करते हुए, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। इसका मतलब है हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। Therefore, conclusions: heat directly proportional to I square. First, heat directly proportional to resistance of the conductor. Second, heat directly proportional to the time of that is time. कितने टाइम तक हीट प्रोड्यूस सप्लाई हो जाती है किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को, तो उतना ही हीट प्रोड्यूस करता है। एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट। अब ये जो हीटिंग इफेक्ट है इसकी एप्लीकेशन क्या है, 2-4 एप्लीकेशन मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा। देखो, आप इलेक्ट्रिकल आयरन का इस्तेमाल करते हैं, आप अपनी वर्दी जो होती है, यूनिफॉर्म जो होती है, आप उसको घर में प्रेस करते हैं, आयरन करते हैं। वो जो आयरन होता है वो एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होता है, उसको वो जो इलेक्ट्रिकल वायर उसमें होती है, प्लग व्लग जो होता है वो करंट के साथ में ये कनेक्ट करते हैं। तो उसमें जो पहला वो कोल्ड होता है, बाद में वो इलेक्ट्रिक आयरन बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है, उसकी वजह से आप अपने यूनिफॉर्म को प्रेस कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक कैटल जो है उसमें इमर्शन रॉड होती है, जब हम इलेक्ट्रिक करंट उसको सप्लाई करते हैं, पानी उसमें भरते हैं, वो विद इन मिनट्स विद इन सेकंड्स वो इलेक्ट्रिक कैटल में जितना पानी होता है वहाँ पे वो ये हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है एक्चुअली, जो ये इलेक्ट्रिकल करंट होती है वो हीटिंग इफेक्ट देती है, तो ये हीटिंग इफेक्ट की एप्लीकेशन है। आपके घरों में वो जो 10-15 रुपए के बल्ब होते हैं उनके अंदर होता है एक फिलामेंट, दैट इज कॉल्ड एज टंगस्टन फिलामेंट। ये टंगस्टन फिलामेंट जो इसका ये मेल्ट तब, ये तो बर्न हो जाता है नो डाउट, मगर मेल्ट हो जाता है जब इसका 3380 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आ जाएगा, वो तब वो मेल्ट हो जाता है। जब इलेक्ट्रिकल बल्ब उसमें टंगस्टन हाई और 10 स्ट्रेंथ उसकी जो होती है वो छोटे छोटे उसके ये टर्न्स बनाई हुई होती है, वो जलता है। किसकी वजह से जलता है, वो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से ऑपरेट हो जाता है। वो इलेक्ट्रिक करंट सारी हीट में चेंज हो जाती है, जिस कमरे में 1-2 वो बल्ब लगे हुए होते हैं वो कमरा पूरी तरह से गर्म हो जाता है। हीटिंग इफेक्ट। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज ये भी हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है एक्चुअली, ये एक सेफ्टी डिवाइस होता है घरों में। ये इसमें करंट जब पास हो जाती है, अगर ज़्यादा करंट पास हो जाएगी उसमें हीटिंग इफेक्ट हो जाता है, विद द रिजल्ट वो खुद ही ब्रेकअप हो जाता है, टूट जाता है। फॉर प्रोटेक्टिंग हाउस होल्ड वायरिंग एंड एप्लियंसेस, जब इलेक्ट्रिक फ्यूज ही टूट गया, आगे करंट नहीं गई, तब ये इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस घर में होते हैं, हाउस होल्ड वायरिंग जो होती है वो सारी की सारी बेटा सेफ रह जाती है। So this was all about the 2 lectures of electric current. Now, uh, for your convenience, it is in examination according to your syllabus. Their numerical problems are also included in your syllabus in this chapter, that is electric current. So, for your convenience, I have solved some important numericals for you, but I have not solved all the numericals of your textbook, but you are advised from me, from myself, that you should go through your textbook and learn various numerical problems which are asked in your examination, that is final examination. More about that, you should learn these what are these numericals for your future use, because in IIT, JEE, other exams, competitive exams, there is what type of exam is there? There is numerical type of exam, यानी कि वहाँ पे आपको बड़े बड़े क्वेश्चन थ्योरी नहीं लिखनी पड़ेगी, you will have to be correct to 100% by giving answers in multiple choice questions, tick cross and assertion, reason and assertion. So that point to be contacted, that point to be viewed here, and so I have solved some numericals for you. This is textbook question. Question goes like this: calculate the heat producer. आपको heat produce कैलकुलेट करनी है, कितनी हीट प्रोड्यूस हो जाती है। When 96,000 coulomb charge is transferred in 1 hour through a potential difference 5 volts, जब 96,000 कोलम्ब चार्ज मीन्स क्यू इज ट्रांसफर्ड इन 1 hour, 1 घंटे में,
through a potential difference of 50 volts, 50 volts. हीट प्रोड्यूस, आपको देखो बेटा, हीट प्रोड्यूसर ये आपको निकालना है, हाँ, चार्ज क्यू ये है 96,000 कोलम, राइट, टाइम इट इज 1 hour, बट you have to convert time into seconds. Why? Because the SI unit of time is second. So 1 hour equal to 3600 seconds. Potential difference V it is given as 50 volt. We know अभी जो हम लोगों ने पढ़ा heat effect. We know H square is equal to IRT. हीट निकालने के लिए बेटा आपको क्या चाहिए फार्मूला, आपको फार्मूला देखिए आई स्क्वायर आर टी। अगर हम देखेंगे बेटा हमारे पास यहाँ पे सिर्फ टी दिया है, टाइम दिया है 3600, ना हमारे पास आई है ना हमारे पास आर है, मगर पूरा चैप्टर जब हम छान मार लेंगे तो हमारे पास है आई इक्वल टू क्यू बाई टी, देयरफॉर आई क्यू चार्ज इट इज 96,000 कोलम डिवाइड बाई टाइम दैट इज 3600। तो ये दो जीरोज काटेंगे, 960 को आप 36 से डिवाइड करेंगे तो वहाँ पे निकलेगा 26.67 एम्पियर करंट। Therefore, our current is equal to 26.67 ampere. Now, also R, you need to calculate R as well. You can calculate R is equal to V by I. V, it is potential difference, and I you have calculated as 26.67 ampere. Therefore, when we divide 50 by 26.67, we would the numerical value comes to be 1.87. Resistance it is ohm. I have not written here ohm, but you should learn itself that it is ohm. You should be able to give units yourself, because I have already in first lecture delivered what are the units and other essential things related to the whole chapter. Now it comes to be here it goes like this. It is 1.87 87 ohm. Okay. Now R calculated. Now I calculated. Now other two things also given. Heat is equal to I square RT. Heat comes to be current comes to be I, that is 26.67 whole square multiplied 1.87. 87 is the resistance, and time is 3600 seconds. 3600 seconds. Therefore, 26.67 raised for 2 means you have to multiply it itself. Therefore, it will come to be 1.29. And this multiplied by this, it will be equal to 6732. This and this when multiplied, it will come to be 4788.4 kilojoules heat produce. यानी कि ये जो क्वेश्चन है जिसमें आपको हीट प्रोड्यूस ये कैलकुलेट करनी थी, जिसमें चार्ज था कंडक्टर के अंदर जा रहा था 96,000 कोलम्बस 1 घंटे तक, जिसका 50 वोल्ट कुछ लगा हुआ था सोर्स ऑफ चार्ज, उसमें जो हीट प्रोड्यूस हो गई वो इतनी हो गई बेटा। दिस वाज न्यूमेरिकल नंबर 1. Numerical number 2 beta, it is also textbook question. I have not written here what is the page number and what is the number of the textbook question, but for your home assignment, I have not written the question number as well as the page number. Only mention that it is a textbook question. So you yourself have to seek the question number as well as page number. Now, how this sample problem goes: a copper wire has a diameter of 0.5 millimeter. एक copper wire है, copper wire तार, कशीर पर त्रामु तार, अच diameter गोबर 0.5 millimeter. बेच अमिच resistivity 8.6 ضرب 10⁻⁻8 ओहम मीटर, यानी कि resistivity दी बेटा तशु पता सो आख सवाल छु में पारनोमुत वीडियो नंबर 1 मज factors affecting the resistance of a conductor. That much gobrium resistance directly proportional to the length, resistance inversely proportional to the area of cross section. Im dan ways karan tachilano gobrium resistance directly proportional to L divided by A. Pach karan is the gobrium karan R is equal to resistivity rho L divided by A. Yeli path is near to gobrium tachilano gobrium part last term. Resistivity is equal to R multiplied by A divided by L. हाँ ये तो आपको भी याद रखना चाहिए ज़बानी, so that you will be able to gain good number of marks in your examination, final examination, inshallah. तो
ये थोड़ा सा डाटा दिया हुआ है, डायमीटर है 0.5 मिलीमीटर और रजिस्टिविटी दी है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 ओहम मीटर। बेटा शिकायत आ रही है आप ज़्यादा वीडियोस वॉच नहीं कर रहे हैं, मैं आपको एडवाइस करता हूँ, क्योंकि पूरा दुनिया इस वक्त लॉकडाउन में पड़ा हुआ है, तो ये आपके लिए सुनहरा मौका है। बिसाइड्स नेट इज ऑन दीज डेज, यू हैव टू ट्राई टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट्स from your mobiles lying in your homes, lying in your pockets. Number one, what you have to calculate? You have to calculate what will be the length of this wire. ये जो कॉपर वायर है जिसका डायमीटर दिए है, आपको इसकी लेंथ निकालनी है। वेरी गुड। अच्छा, टू मेक इट रेजिस्टेंस 10 ओहम, ताकि इसकी रेजिस्टेंस जो है वो 10 ओहम बन जाए। नाउ सेकंड, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड ओहम? इफ रेजिस्टेंस हाउ मच डज रेजिस्टेंस चेंज, रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी अगर डायमीटर डबल किया जाता है? डबल, डबल का मतलब हो गया अगर ये डायमीटर 2 है, डबल करके ये 4 बनेगा, 2 मल्टीप्लाई द सिंपल। नाउ सॉल्यूशन, डायमीटर ऑफ कॉपर वायर 0.5 mm, तो रेडियस क्या आएगा बेटा इसका हाफ, 0.5 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0.25 mm। रेजिस्टिविटी क्या दी है वैल्यू ऊपर ही बेटा, 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁸ ओम। बेटा रेडियस इज इक्वल टू 0.25 mm, ये मिलीमीटर में दिया है, लेकिन जो लेंथ होती है वो मेजर की जाती है बेटा मीटर्स में। देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू 0.25 मल्टीप्लाई, 1 मिलीमीटर होता है 1 मीटर का 1000th पार्ट, यानी कि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। देयरफॉर मल्टीप्लाई 1/1000, तो इसकी वजह से बेटा आएगा ये 100, इट इज 10⁻³ नीचे तो प्लस आएगा 10⁻³, लेकिन जब हम इसको ऊपर ले ये माइनस बनेगा। ये आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बोलते हैं लाना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, जो एक वायर है ये कितनी मोटी है, दैट इज कॉल्ड एज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, दैट इज पाई आर स्क्वायर। पाई इज 2/7 आर स्क्वायर, आर निकला है 0.25 मल्टीप्लाई 10⁻³ डिवाइड ये होल पावर 2, 22 डिवाइड बाई 7, ये मतलब को 0.25 स्क्वायर 10⁻³ अथ स्क्वायर, ये लिखो ये करो 0.25 करो 2 लट ज़रब सुन 0.0625, ये करो 2 लट ज़रब 10⁻⁻6, सीधा ऊपर वाले ये माइनस ये पावर ये और ये पावर ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो गोब्रो ये सॉरी ये ज़ुतोवु ज़रब ये करो 1.3750/7 ज़रब 10⁻6, ये करो गोब्रो 8 जब हम 1.375 को डिवाइड करेंगे 7 से, बेटा वहाँ पे निकलता है 0.1964 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। आप कहाँ खो गए हैं वो तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना तो जानता हूँ आपके लिए क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है। आप इसको बेटा ये आप लिख लीजिए अपनी जगह पे। आप from now on, from 10th and now on, you have to go through these questions anyhow if you are to take science as your main subject. Then resistivity, it is 1.6 multiplied 10⁻⁸ ohm meter. Resistance R, it is 10 ohm. Length you have to calculate, that is what, ये आपको length calculate करनी है, that you have to calculate. Resistivity is R multiplied A divided by L. Resistivity दिया है value, resistivity है value 1.6 multiplied 10⁻⁸ is equal to 10 multiplied by 0.1964 multiplied 10⁻⁻6 divided by L। अब ये जो L है ये मैंने यहाँ लिया है, ये नीचे लाया है 10 मल्टीप्लाइड बाई ये मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। बेटा ये जो 10⁻⁸ है अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे ये बनेगा प्लस, तो नीचे रहेगा सीधे ये, तो 10⁻⁻6 में से काटो +8 वो बनेगा +2, तो आएगा ऐसे बेटा। सॉरी यहाँ पे मैंने यहाँ पे 1.6 नहीं लिखा हुआ है, इट इज हियर 1.6, तो L इज इक्वल टू इट इज 100, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे 100 से मल्टीप्लाई इट इज 196 पॉइंट, ये 2 0 जहाँ पे इसलिए पॉइंट डिस्प्लेस हो जाएगा टूवर्ड्स राइट 2 डिजिट
196.4 डिवाइड बाई 1.6, ये पॉइंट के बाद डिवाइड बाई 10, पॉइंट के बाद डिवाइड बाई 10, ये 10 और ये 10 कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी 1964 डिवाइड बाई 16, not 1.6, it is 16. When you divide this, it will be L is equal to 1 to 2.7 मीटर। यानी कि लेंथ बेटा आपको निकल गई कितनी, लेंथ आपको निकल गई बेटा 122.7 मीटर। अब what happens if diameter जो पहले बेटा था 0.5 mm is doubled, the radius is also doubled। डायमीटर अगर 4 है तो वो डबल किया जाएगा, हो जाएगा 8। रेडियस पहले 2 था, वो भी डबल हो जाएगा तो हो गया 2। तो डायमीटर 0.5, तो रेडियस कैलकुलेशन करके इधर उधर बेटा रेडियस आपका निकलेगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 1000 इक्वल 0.0005 मीटर। ये आपका रेडियस आएगा मीटर्स में कैलकुलेट करके। मैंने यहाँ पे कैलकुलेट भी किया है, देखो बेटा आप ऐसे रेडियस इज इक्वल टू 0.25 हाँ आएगा, जबकि डायमीटर 0.5 है, रेडियस आएगा 0.2। इसको डबल करना है, वो आएगा 0.25 मल्टीप्लाई टू दैट 0.5 मिलीमीटर। इसी को डिवाइड करके आप जब इसको मीटर में लाने की कोशिश करेंगे, इट विल बी 0.0005 मीटर। तो यहाँ पे आपको मैंने कैलकुलेट करके दिखा है, यहाँ पे मैंने थोड़ा शॉर्ट लिखा है। एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई 22 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई रेडियस स्क्वायर 0.0005 ऐसा। तो बटा 7, इसको हम 3.14 भी लिख सकते हैं। इसको मैंने 2 बार मल्टीप्लाई किया है, 1 2 3 4, तो 4 प्लस 4 हो गया 8। 8 डिजिट आएंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 5 25। तो ये 3.14 को मल्टीप्लाई करो इससे बेटा, ये बेटा यहाँ पे ये पॉइंट नहीं है, पॉइंट बेटा ये है, ये याद रखना। तो जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वो आएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.00, ये इतना आएगा 785 मीटर स्क्वायर। सो न्यू रेजिस्टेंस विल बी आर, न्यू रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई ए डिवाइड बाय एल। रेजिस्टिविटी कितना दिया है ऑलरेडी, वैल्यू 1.6 10⁻⁻8। तो रेजिस्टिविटी इज मल्टीप्लाई बाय इतना डिवाइड बाय वो जो लेंथ निकली है 122 मल्टीप्लाई बाय 7। बेटा रेजिस्टिविटी अब आ गया है ये, आपको ये निकालना है, ये आएगा ऐसे, ये आएगा देखो बेटा ये मल्टीप्लाइड बाय ये आएगा नीचे, हाँ गया ये, और ये जाएगा ऊपर। हाँ रेजिस्टिविटी न्यू रेजिस्टिव 1.6 10⁻⁸ 122 पॉइंट ये था। जब हम इसको बेटा करेंगे ना साइंटिफिक नोटेशन में चेंज, इट विल बी रेजिस्टेंस न्यू 1.6 2.7 ये 10⁻⁸ पकना योकुन ये बन 7.85 10⁻⁷ क्या है इसी पॉइंट शुक्र में डिस्प्लेस 1 2 3 4 5 6 7 कि है ना 7.85 गई ना 7 खुद तो माइनस मगर ठीक अत वन स्टैंडर्ड फार्मस मज अन तो ये स्टैंडर्ड फार्मस मज पॉइंट खोर सिर्फ ये थावन डिजिट अकुई थावन 1 2 3 4 9 तान रेजिस्टेंस न्यू 100 करो जरब 109.352 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ ये 10⁻⁷ खो ये बन 10⁻+7 डिवाइड बाय 7.85। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे वो निकलेगा ऐसे 109.352 बटा 7.85 10⁻⁻1 ये गो 10⁻⁻1 ये 10⁻⁻1 वालों ये बन 10⁻+1 यह ये मल्टीप्लाई करो यह सजन ये पाई 78.5 बने अतः 7.85 में 78. तो इसको बेटा इसके साथ जब डिवाइड किया जाएगा ना वहाँ पे न्यू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 2.50 ओम। नाउ रेशियो वो पुरानी रेजिस्टेंस और नई रेजिस्टेंस जो ऑलरेडी दी है 10 ओम, न्यू रेजिस्टेंस डिवाइड बाय पुरानी रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ओरिजिनल 22.5 डिवाइड बाय 10। तो न्यू रेजिस्टेंस डिवाइड बाय ओल्ड रेजिस्टेंस इक्वल 1/4, तो न्यू रेजिस्टेंस इक्वल 1/4। तो बेटा ये न्यूमेरिकल थोड़ा कठिन है आपके लिए, लेकिन फिर भी जब आप इसको अपने बुक से वीडियो से 1 2 बार 3 बार देख लेंगे यू विल बी एबल टू कैलकुलेट दिस। हाँ तो ऐसा है कि बेटा इसको तो एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आपका टाइम जो है बहुत ज़्यादा प्रेशियस है आपके सीखने के लिए, हाँ सिखाने के लिए हम अवेलेबल हैं 24 आवर्स। सो इस वीडियो में बेटा इतना ही।
अगर आपको कुछ लगा कि आपको कहीं पे समझ नहीं आया, तो you can call me at this number. I have already given you my number, so 2837. Feel free to contact this number for various queries about videos only which I have delivered so far, and nothing other than that. Hope you have liked this video. Today it is all. Goodbye. Enjoy your day with ease and respect to your parents. Assalamu alaikum.